Assalamu alaikum. My name is Sadaf Iqbal and welcome to Introduction to Computer Programming course. The topic today we will cover is about functions. Functions. Okay. In previous lecture, we have talked about function definition, function prototype, and how to call a function. Today, we will first recall how functions work and cover all these three topics with examples, and then we will go to the next topic. Okay, coming towards function definition. What is function definition? Okay, this is a syntax. We will come back to it. First of all, we'll see what function definition is. A function definition in C programming consists of function header, function body. Okay, you can see in the syntax we have this line. This is actually the function header, and whatever the function will perform, the statements or the task the function will perform is basically the body of the function. So here are all the parts of the function. Return type. A function may return a value. The return type in the data type of the value the function returns. Some functions perform the desired operations without returning a value. In this case, the return type is the keyword. So, अगर इस syntax को हम देखें, here is the return type. जो भी वह function जो value return करेगा, उसकी return type सबसे पहले लिखनी है, ठीक है? That is the return type. अब जरूरी नहीं है कि फंक्शन कुछ रिटर्न भी करे. If function is not returning any value, so you have to write only void. If it is integer, then write integer. A character, you can write character. So this is the return type. And the next part is your function name. जो भी आप function बना रहे हैं, चाहे वो दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है, या वो मल्टीप्लाई कर रहा है, या वो किसी चीज की कोई वैल्यू फाइंड कर रहा है, whatever your function is, you have to define a name, and that name should be a bit different from the predefined functions. ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है पैरामीटर. पैरामीटर लिस्ट. अच्छा, जब भी आप फंक्शन डिफाइन कर, यहां से देख लेते हैं. फंक्शन नेम. This is the actual name of the function. The function name and the parameter list together consist the function header. That is your function header. Okay, what parameters are? A parameter is like a placeholder. When a function is invoked, you pass a value to the parameter. The parameter list refers to the type, order, and number of parameters of the function. Parameters are optional. That is, a function may contain no parameter. So this is a parameter list. Acha, when you are defining a function, you have to mention the name and the return type of the parameter. ये हम आगे examples में भी इसको more elaborate कर दूंगी मैं. इसमें क्या है, आपके जो पैरामीटर्स हैं. अच्छा, पैरामीटर्स जब भी होंगे आपने उसकी रिटर्न टाइप लिखनी है, आपने उन पैरामीटर्स का नाम लिखना है, और कितने आपके पैरामीटर्स हैं ये आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना. ठीक है, ये आपको मोर क्लियर हो जाएगा जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे. और देन योर कम्स द बॉडी ऑफ द फंक्शन. बॉडी ऑफ द फंक्शन में आपकी ऑल द स्टेटमेंट्स, जो भी टास्क आपका जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो आपके बॉडी ऑफ द फंक्शन में आ जाएगा. ओके, the function body contains a collection of statements that define what the function does. Then comes the function declaration. Achha, function declaration is also known as your function prototype. A function declaration tells the compiler about तीन चीजें वो आपको बताता है. That is your function's name, parameters, and return type. You can see the syntax. The function name similarly as your function definition. Yeah, they should be same. Return type should be same. आप जो return type definition में आप बता रहे हैं, जो function आपको return कर रहा है value, ये आपकी return type होगी, function name होगा और parameter list होगी. जो चीज different है definition से, in function declaration आप parameters return type बता दें, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं. ठीक है? Prototype is always terminated by the semicolon, and you can see in function definition there is no semicolon over here.
It doesn't contain function body. You just have to declare, बस आपने function body जो है that is in the function definition. A function prototype gives information to the compiler that the function may later be used in the program. So prior to definition आप function declare करते हो और compiler को पता होता है कि ये function कहीं ना कहीं बाद में use होगा. Parameter names are not important in function declaration, only their type is required. So if suppose we have two variables a and b and their return type is integer, so you don't have to write integer a comma integer b, you just write int comma a, right? So you can see it in the examples later on. Okay, then comes calling a function. When a program calls a function, the program control is transferred to the called function. जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं आप उसको यूज करते हैं कहीं ना कहीं. दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फंक्शन, रीयूजेबिलिटी. आप उसको बार बार कहीं ना कहीं यूज करेंगे. जहां आप यूज कर रहे हैं बेसिकली यू कॉल द फंक्शन. ठीक है, जब भी आपका फंक्शन कॉल होता है तो जहां पे भी कॉल होता है वो कंट्रोल आपका बैक टूवर्ड्स द फंक्शन डेफिनेशन, जहां डिफाइन होता है फंक्शन वहां पे ट्रांसफर हो जाता है. वी कैन सी इन द कमिंग एग्जाम्पल्स. ओके, a called function performs a defined task, and when its return statement is executed or when its function ending close brace is reached, it returns the program control back to the main program. Okay, to call a function, you simply need to pass the required parameters along with the function name. And if the function returns a value, then you can store the return value. These things will be more clear when doing an example. Okay, here comes the first example. Okay, this is example 1 that create a function to sum two numbers. So this is your function prototype. Don't forget to mention the prototype of a function. It is not necessary to declare it, but it is preferred if you declare the function. So no need to mention names of the parameter, only mention data type and return type. So this is your function prototype. You can see this is the return type integer. ये आपकी return type आ गई. Add is the function name. Okay, ये दो parameters हैं. और as mentioned in previous slide कि आपको mention करें या ना करें, डिक्लेरेशन में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पैरामीटर्स का नाम मेंशन करें या ना करें. तो यहाँ देखिए आपने सिर्फ उनकी रिटर्न टाइप मेंशन की, इंटीजर कॉमा इंटीजर. दैट मींस देयर आर टू पैरामीटर्स विद रिटर्न टाइप इंटीजर, बट डिक्लेरेशन में हमने उनका नाम मेंशन नहीं किया. कर लें तो भी कोई इशू नहीं और ना करें तो भी कोई इशू नहीं. ओके, देन कम्स द मेन प्रोग्राम, इंटीजर मेन. यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स डिफाइंड है m and n. m की वैल्यू है 20 and n is 30 and another variable of int type is sum. So what is happening? यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं. दिस इज add फंक्शन जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया था वो यहाँ हम कॉल कर रहे हैं. अब इसकी डेफिनेशन किधर है? यहाँ देखें, अब दो पैरामीटर्स, बिकॉज हमने डिक्लेरेशन बता दिया था टू पैरामीटर्स थे m और n, और इसका मतलब यहाँ इज इक्वल टू हमने सम लगाया है. इसका मतलब है ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है किस टाइप की? इंटीजर टाइप. डिक्लेरेशन से भी पता चल रहा है इंटीजर टाइप की एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि इस सम में ऐड हो, इस सम में स्टोर हो रही है. ठीक है, सो remember while calling a function you should not mention the return type of the function. Also do not mention data types of arguments, name of arguments, right? So यहाँ आपने सिर्फ name बताना है arguments का, यहाँ उनकी integer type नहीं बतानी, ना ही आपने function की return type बतानी है. You just write the name, pass the arguments, that's it. ठीक है, और अगर उसकी कोई रिटर्न हो रही है वैल्यू, आपने उसको किसी में स्टोर करना है, you can store in that. ओके, यहाँ हमने प्रिंट कर दिया सम. अब क्या हुआ? जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो जब फंक्शन कॉल किया जाता है तो कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द फंक्शन डेफिनेशन. अब यहाँ से जब यहाँ ये आपका फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन की तरफ. यहाँ ये हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन है. फंक्शन डेफिनेशन में हमारे पास दिस इज द इंटीजर रिटर्न टाइप. आपके पास रिटर्न टाइप है फंक्शन का.
फंक्शन का आपके पास नेम है दैट इज ऐड। यहाँ आपको पैरामीटर्स के नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। सो इंटीजर a and integer b, right? int a and int b. A and b are the variables, are the parameters with return type int. यहाँ फंक्शन डेफिनेशन में इनको मेंशन करना जरूरी है। अच्छा, अब ये कर क्या रहा है इस फंक्शन की, जो दिस इज द हेडर एट बॉडी, बॉडी में जो स्टेटमेंट वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ए और बी, जो भी यहाँ से वैल्यूज आपकी पास होंगी फंक्शन कॉल से, ठीक है। एम ए में आ जाएगा और एन की जो भी वैल्यू होगी वो बी में आ जाएगी। एंड व्हाट इज द फंक्शन डूइंग, वो क्या कर रहा है, ए और बी को ऐड कर रहा है और रिटर्न कर रहा है वैल्यू। यहाँ जब आपके curly bracket क्लोज होंगे, the control will again transfer back to where the function was called, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करेगा, स्टोर कर देगा सम में जो भी रिटर्न किया है आपके फंक्शन ने। तो रिटर्न क्या किया है फंक्शन ने, ए और बी दोनों को ऐड करके उसने रिटर्न की है वैल्यू। सो व्हाट शुड बी इन सम, सम में क्या होनी चाहिए वैल्यू, 20 और 30 वैल्यूज यहाँ पास हुई थी ए और बी में, और ए और बी को जब ऐड करेंगे आंसर शुड बी 50। तो 50 वैल्यू रिटर्न हुई है इधर और यहाँ पे सम में स्टोर हुई है। सो व्हेन यू विल प्रिंट the value of sum, that should be equals to 50. So I hope it is clear कि function प्रोटोटाइप क्या होता है, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन हम कॉल कैसे करते हैं और फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। आगे मजीद एग्जांपल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले हम इस कोड को रन करते हैं कोड ब्लॉक में, ठीक है, देखते हैं क्या हमारे पास यही रिजल्ट आता है कि नहीं। सो दिस इज द सेम प्रोग्राम, फंक्शन प्रोटोटाइप, these are the values passed here in the definition and returning a plus b. Let us run this program. Answer should be 50. Okay, let us see. Okay, so the sum is 50. I hope it is clear. Okay, come on. Next हम देखते हैं next example. Okay, second example, create a function to find area of rectangle. अब हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपके पास क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास एरिया जैसा आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, एक लेंथ चाहिए और एक हमें ब्रेथ चाहिए। सो यू कैन सी इन फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है कि इसमें हमने फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया पहले। तो अगर हमने फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, यू कैन सी इन दैट केस आपका प्रोग्राम बिल्कुल स्मूथली रन करेगा। सो हियर वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन, एज यू कैन सी दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, वी हैव द रिटर्न टाइप which is integer, area of rect, this is the name of the function, and then int length, int breadth, ठीक है। So length and breadth are the two parameters and both have the integer data type. Okay, now what the body of the function says, integer area, area is equals to, this is a simple formula। हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर एरिया फाइंड करने में हमने जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना, टू पैरामीटर्स को हमने मल्टीप्लाई करके हमने एक और वेरिएबल में स्टोर कर दिया एरिया, एंड देन वी आर रिटर्निंग दैट वेरिएबल back to function. Okay, so this is the main program, main function. Now these are the parameters and we have to give the values to that function. So here we have two variables L and B representing length and breadth. एक 10 value है, एक हमने 5 रख दी। So here we are calling the function int is equals to area of rect. So this is the name of the function with two parameters. हम इसमें से values पास कर रहे हैं, L की 10 और B 5, ठीक है। We are calling the function। जब आपका इस लाइन पे पहुंचेगा
कंपाइलर, तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा आपका बैक टू द फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे वो वैल्यूज पास करेगा, एल को 10, ब्रेथ को 5, एंड इट विल परफॉर्म दिस टास्क multiplying both the values and returning the multiplication result, storing it in area and returning the area. जब ये क्लोज हो जाएगा, the control will come back towards the where the function was called. यहाँ पे वो इस area में store कर देगा that value, and when we will print we will get 50 value. I hope it is clear. Let us see in the code block. So this is the second example. Create a function to find area of rectangle. Function definition. This is where the function is defined. This is the main function, and this is where we are calling that function. In this example, we didn't declare the function. Okay, without declaring the function, still our program will be running smoothly. Okay, let us see the result. It should be 50. Okay, it is 50. इसका मतलब हमारा फंक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे चाहिए डिफरेंट वैल्यूज, अगर मैं चाह रही हूँ एल की मैं कोई और वैल्यू करना चाह रही हूँ और ब्रेथ मुझे कोई और वैल्यू चाहिए, so this is actually the advantage of the function. You can use the function again and again. You can call the function again and again. You don't have to write the whole function again and again, because that is the advantage of the function, the reusability. आपको बार बार फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, just have to define once and you can call it whenever you want. So if I want to find the area with different value, what can I do? मैं दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, ठीक है, with different values. अब मैंने L 50 ले लिया और ब्रेथ मैंने 20 ले लिया, दोबारा से मैंने उस फंक्शन को कॉल किया। अब इस टाइम जब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, आई एम पासिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, और आप इसमें जब आपका एरिया आएगा तो दैट शुड बी 1000. So let us run the program. You can see जब पहले हमने कॉल किया द आंसर वाज 50. जब दोबारा हमने डिफरेंट वैल्यूज के साथ सेम फंक्शन को दोबारा कॉल किया, योर आंसर इज 1000. ओके, बैक टू स्लाइड्स. ओके, so this is a question. Is it always necessary to declare the function before using it? अभी एक एग्जाम्पल में मैंने पहले डिक्लेयर किया है और दूसरी एग्जाम्पल में मैंने डिक्लेरेशन नहीं की, विदाउट डिक्लेयरिंग और विदाउट फंक्शन प्रोटोटाइप मैंने फंक्शन रन करके दिखाया, वो बिल्कुल ठीक रन हुआ है, ठीक है। तो क्या ये जरूरी है कि हमें फंक्शन डिक्लेयर करना चाहिए? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट इज प्रेफर टू डिक्लेयर द फंक्शन बिफोर यूजिंग इट. ओके, व्हाई नॉट? हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. अभी पीछे हमने वैसे देख भी लिया है, लेकिन अगेन हम इसको दो तरीकों से देखते हैं. ओके, द फर्स्ट इज डिफाइनिंग अ फंक्शन बिफोर कॉलिंग इट विद नो डिक्लेरेशन और फंक्शन फोटो. अगर हम डिफाइन कर लें कॉल से पहले, लेकिन हम डिक्लेरेशन ना करें, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया जिसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया, उसमें हमने फंक्शन को डेफिनेशन पहले कर दी, देन हमने उसके बाद फंक्शन को कॉल किया एंड इट वाज रनिंग फाइन, ठीक है, देयर वाज नो एरर. सो इससे तो बात क्लियर हो जाती है. लेट अस सी द सेम एग्जांपल. दो डिफरेंट ये जो है हमारे पास कंडीशंस हैं, दोनों को हम एक ही एग्जांपल से रन करते हैं, ठीक है. सो इन दिस फर्स्ट एग्जांपल हियर इज अ कैरेक्टर फंक्शन डेफिनेशन. सिंपल क्या है, उस फंक्शन की रिटर्न टाइप कैरेक्टर है, देयर इज नो पैरामीटर, एंड आपके पास रिटर्न वैल्यू है a, जस्ट वो एक रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर, ठीक है, दिस इज अ कैरेक्टर. उसके बाद डेफिनेशन हमने पहले कर ली, उसके बाद हम मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. यहाँ पे यू कैन सी c इज इक्वल टू फन, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन कॉल, इट इज storing the value in c. when the function will call, the function call appears, आपका कंट्रोल बैक टू डेफिनेशन जाएगा और यहाँ पे वो आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू a. तो c में आपके पास a वैल्यू स्टोर होनी चाहिए. लेट अस सी इन कोड ब्लॉक, इज इट वर्किंग फाइन? इफ वी, द कंडीशन इज कि हम डिक्लेयर नहीं कर रहे,
बट हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को बिफोर कॉलिंग इट। इसको हम कमेंट कर देते हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग, सिंपल फंक्शन है करेक्टर टाइप का, रिटर्निंग वैल्यू ए। यहाँ पे आपके पास ए पे कॉल फंक्शन कॉल कर रहे हैं और सी में इसको स्टोर कर रहे हैं। द आंसर शुड बी सी। Yes, the character is, sorry, A. The character is A because your function is returning A and storing the value in C. तो हमने C को प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास A आ गई। ओके, सो इसका मतलब है अगर हम डिफाइन पहले कर रहे हैं फंक्शन को बिफोर कॉलिंग इट, so there is नॉट एन इशू। ठीक है, अगर हम डिक्लेयर नहीं कर रहे बट कॉलिंग से पहले डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। सेकंड जो आपके पास कंडीशन, दैट इज calling a function before defining it with no declaration or function prototype। इसका मतलब ये कि आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं लेकिन उससे पहले ना आपने फंक्शन डिफाइन किया है ना उसको आपने डिक्लेयर किया है। तब क्या होगा, ये सेम एग्जांपल है। इसका ये कॉलिंग वाला पार्ट मैंने ऊपर ऊपर कॉपी कर दिया है और जो डेफिनेशन है वो मैंने कॉल के बाद नीचे कर दिया। दैट इज इंटीजर में करेक्टर c is equal to 1, this is where we are calling the function, but there is no prior information about the function, ना डिक्लेरेशन है ना डेफिनेशन है, लेकिन फंक्शन कॉल के बाद आपने इसको डिफाइन किया है फंक्शन को। ठीक है, सो इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, लेट अस चेक क्या हमें आंसर वही आंसर मिलेगा। सो द सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट अस रन दिस। So there is an error known as implicit declaration of function। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन का आपके पास एरर आएगा क्योंकि कंपाइलर के पास पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उस फंक्शन की, कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई प्रायर इंफॉर्मेशन कंपाइलर के पास नहीं होगी तो वो बाय डिफॉल्ट ये समझेगा कि उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, वो समझेगा कि उसकी रिटर्न टाइप फंक्शन की इंटीजर है, लेकिन जब वो डेफिनेशन पे जाएगा वहां से उसको पता चलेगा कि नहीं, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर नहीं बल्कि कैरेक्टर है। इन दैट केस वो उसको एरर कंसीडर करेगा और वो यहाँ बता देगा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो इट मीन्स you have to at least define the function if you're not declaring it, but you have to define the function before calling it. I hope it is clear now. Okay, next slide पे चलते हैं। So हम जरा conclude करते हैं because these are the topics आप पहले जो पढ़ चुके हैं, we were just recalling it। So the advantages of function, आपके पास क्या है, large and difficult program can be divided into sub programs and solved। आप different chunks और modules बना लें, that will be easy। Functions help us in reducing code redundancy। आपको बार बार प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, you just have to call it। जो भी टास्क आपको लग रहा है कि वो रिपीटेडली आपके प्रोग्राम में होगा, यू कैन मेक अ फंक्शन ऑफ इट और फिर आप उस फंक्शन को जहां आपको जरूरत हो वो आप उसको कॉल कर सकते हैं। ड्यू टू रिड्यूसिंग साइज मॉड्यूलर फंक्शन इट इज इजी टू मॉडिफाई एंड टेस्ट एंड फंक्शन प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? आपके पास आपको कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जैसे हम उनको कॉल करते हैं, यू डोंट हैव टू गो इनसाइड द फंक्शन कि वो किस तरह फंक्शन काम कर रहा है, उसकी तह तक जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू कॉल इट और वो आपको परफॉर्म करके आपका टास्क दे देगा। सो these are the basic advantages of function। Okay, coming towards a new topic, that is function or arguments, the main topic of the lecture। function arguments क्या होते हैं ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। Okay, first of all let us talk about difference between an argument and
पैरामीटर। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि कहीं मैं वर्ड पैरामीटर यूज कर रही हूँ और कहीं मैं वर्ड आर्ग्यूमेंट यूज कर रही हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस? पैरामीटर क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है? सो पैरामीटर is a variable in the declaration and definition of the function. So what we the you know डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में जो हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर, दैट इज द पैरामीटर्स रिसीव्ड बाय फंक्शन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स फंक्शन रिसीव करता है, ठीक है, दैट आर योर फॉर्मल पैरामीटर्स। वी विल गो इन डिटेल, इस पूरे लेक्चर में हमने ये फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर के बारे में ही बात करनी है। सो अभी तक तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, एंड दे आर आल्सो नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट? ओके, व्हाट आर फॉर्मल पैरामीटर्स? The parameters that appears in function declaration definition, same. Okay, now parameters to समझ आ गए। arguments क्या है? Arguments is the actual value of the parameters that get passed to the function. Okay, जो वैल्यूज जब हम आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसमें से जो वैल्यूज पास करते हैं टू द फंक्शन, दीज आर योर आर्गुमेंट, उनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। सो आर्गुमेंट्स आर योर एक्चुअल पैरामीटर्स, दैट इज द पैरामीटर पास टू अ फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, जो फंक्शन रिसीव करता है दैट इज योर फॉर्मल पैरामीटर्स, और जो फंक्शन को पास किए जाते हैं वैल्यूज, दैट इज योर एक्चुअल पैरामीटर्स। पास कहाँ किए जाते हैं? पास किए जाते हैं कॉल, जब फंक्शन कॉल की जाती है तो वैल्यूज पास की जाती हैं। सो व्हेन यू आर कॉलिंग द फंक्शन, जहाँ पे वो वेरिएबल्स हैं उनको आप आर्गुमेंट्स कहेंगे या आप उनको कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। जहाँ फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन है वहां पे आप वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उन पैरामीटर्स को रिसीव कर रहे हैं। So those parameters are known as formal parameters. I hope थोड़ा सा आपको पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स का क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आगे हम मजीद एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। Okay, the parameters that appear in function calls, these are actual parameters. The parameters that appears in function declaration and definition, these are your formal parameters. मैंने कोशिश की है कि फॉर्मल को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करूं और एक्चुअल को मैं ये रस्ट ये रेड जो भी है इस कलर से रिप्रेजेंट करूं, ताकि आगे एग्जांपल्स में भी आपको देख के भी पता चल जाए कि which one is the formal parameter and which one is your actual parameter. सो द एग्जाम्पल, अच्छा, जो हमने पिछली एग्जाम्पल की थी, सबसे पहले एग्जाम्पल क्रिएट अ फंक्शन टू सम टू नंबर्स, उसी एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताऊंगी कि विच वन आर द एक्चुअल पैरामीटर्स एंड विच वन आर द फॉर्मल पैरामीटर्स। सो एक्चुअल पैरामीटर्स हमने क्या कहा था? जब फंक्शन कॉल किया जाता है, फंक्शन में से जब कॉल किया जाता है वहां से जो वैल्यूज पास की जाती हैं टू द फंक्शन, दोज आर योर एक्चुअल पैरामीटर्स। तो यहाँ फंक्शन कॉल कहाँ पे है? इधर sum is equals to add m comma n. m में आपकी वैल्यू है 20 और n में आपकी वैल्यू है 30. So we are passing 20 and 30. So m and n are your actual parameters, or you can say arguments या actual parameter. ठीक है? Secondly, formal parameters जो फंक्शन डेफिनेशन या डिक्लेरेशन में होते हैं और वहां पे आप उनको पैरामीटर्स को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें, दिस इज योर फंक्शन डेफिनेशन int a and integer b, right? So a and b, they are receiving these values. m की वैल्यू आपके पास a में आ रही है और n की वैल्यू आपके पास स्टोर हो रही है b में। So your a and b are your formal parameters, ठीक है, और parameters, these are your arguments, m and n the arguments, and a and b are the parameters. So m and n are actual parameters and a and b are your formal parameters. I hope actual और formal में आपको समझ आ गई है। ओके, अब हम चलते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में हमें आइडिया हो चुका है। अब आर्गुमेंट्स पास करने के दो तरीके हैं, ठीक है। हाउ वी कॉल अ फंक्शन, इसमें आपके पास दो तरह के तरीके कॉलिंग अ फंक्शन, पासिंग values or passing references, ठीक है। You can call a function by passing a value
You can call a function by passing a reference. So we have two categories. We will see in details how each of these work. Okay, pass by value and pass by reference. Okay, first of all, let us check pass by value. Okay, pass by value. Values of actual. This is actually we are calling a function, right? We are calling a function and we are passing a value. तो जो वर्डिंग्स है उसी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कॉल करते वक्त हम उसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं. सिंपल अभी तक जो हमने किया पिछले जितनी भी एग्जांपल्स में, हम उन सब एग्जांपल्स में फंक्शन कॉल कर रहे हैं और कॉल करते हुए जो हम आर्गुमेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वैल्यूज पास कर रहे हैं. ठीक है, तो ये वही चीज है, calling a function by passing values. So values of actual parameters are copied to functions formal parameters. अब ये actual और formal मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी है. एक्चुअल पैरामीटर्स जब हम कॉल करते हैं तो वहां से हम पास करते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर्स डेफिनेशन में जो आपकी फंक्शन डेफिनेशन होती है वहां वो उन पैरामीटर्स को रिसीव जो करता है, दैट इज योर फॉर्मल पैरामीटर्स. एक्चुअल पैरामीटर्स फंक्शन कॉल में जो वेरिएबल्स होते हैं दिस आर एक्चुअल पैरामीटर्स. फॉर्मल पैरामीटर्स आपके पास जो फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं. ठीक है, अच्छा अब वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स, जो एक्चुअल पैरामीटर्स जो हम कॉलिंग के वक्त जो वेरिएबल्स है आर कॉपीड टू फंक्शंस फॉर्मल पैरामीटर, राइट. The two types of parameters are stored in different memory location. This is very important point. जो भी आप एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स है, पास बाय वैल्यू जो हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को by passing value. ठीक है, in that case remember both the actual parameters and the formal parameters, they are stored in different memory locations. ये आप इस पॉइंट को याद रखें कि दोनों की डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं. एक्चुअल पैरामीटर्स एक अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है और फॉर्मल पैरामीटर्स आपके अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है. Changes made inside the function are not reflected in actual parameters of caller. जो भी काम, जो भी टास्क फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है, जो भी फंक्शन आपका जो भी स्टेटमेंट है फंक्शन में, फंक्शन का जो भी टास्क है वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज नहीं करेगी. रिमेंबर, वो उसकी एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यूज है उनको चेंज नहीं करेगी. फंक्शन ने जो भी परफॉर्म करना है उसका आपके एक्चुअल पैरामीटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज बोथ आर इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस. दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में पड़ी हुई हैं. जो फंक्शन जो भी बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स उसकी होंगी दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर्स. यू विल बी मोर क्लियर जब हम एग्जांपल्स देखेंगे. फिलहाल आप ये चीजें याद रखें कि आपके जो भी एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स हैं पास बाय वैल्यू में आपके डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं, और जो भी फंक्शन आपका टास्क परफॉर्म करता है उसका कुछ भी रिफ्लेक्टेड, उसको वो आपकी रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होती एक्चुअल पैरामीटर्स में. कोई भी चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर्स में परफॉर्म नहीं होती. Okay, parameters are always passed by value. Mostly you pass the parameters are always passed by value in C. Let us see with an example. I have tried to make the boxes ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में वैल्यूज किस तरह स्टोर हो रही हैं और क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वैल्यूज को या नहीं जो भी आप फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हो टास्क. So this is this function called by value. Okay, what is the function doing? We have two variables x and y with value x is equals to 10 and y is equals to 20. Function call passing a value of x and y to the function definition. x and y are actual parameters. अच्छा, मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने actual parameters को red से define किया है और formal parameters को blue से define किया है. So you can see, अच्छा यहाँ पे actual parameter, this is your fun x comma y. So what is it? Is it function definition or function call? We are calling a function. ठीक है, ये function call है. function जब call किया जाता है
उसके आर्गुमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। तो यहाँ फंक्शन में x और y आर योर एक्चुअल पैरामीटर्स। x और y जब आपका फंक्शन कॉल किया जाता है तो यहाँ से ट्रांसफर होगा कंट्रोल टू द फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ आपका फंक्शन डिफाइन हुआ, ठीक है। अभी x में क्या स्टोर है, 10, यहाँ ऊपर हमने डिक्लेयर किया है। y में क्या स्टोर है, 20, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पे आपकी ट्रांसफर हुई, कॉपी हुई। Integer, this is the function definition. Int x, int y, where this x and this y are your formal parameters. As mentioned in previous slides, हमने क्या कहा था कि जहाँ function definition होती है वहाँ पे आपके जो parameters होते हैं that they are known as formal parameters. So x की वैल्यू इधर आ गई, y की वैल्यू इधर आ गई। x में क्या है 10, y में क्या है 20। यहाँ तक क्लियर है। सिंपल, हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन से पहले हमने एक्स वाई को जो भी वैल्यूज दी वो वैल्यूज फंक्शन कॉल से यहाँ पे कॉपी हुई, पास बाय वैल्यू, ठीक है। वी आर फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। यहाँ x में आपके पास 10 आ गया, y में आपके पास 20 आ गया। फॉर्मल पैरामीटर में अभी फिलहाल आपके पास 10 और 20 है। अब आ गया फंक्शन की बॉडी। फंक्शन अब जो भी परफॉर्म करेगी, हमने प्रीवियसली मेंशन किया है कि फंक्शन जो भी परफॉर्म करेगी टास्क उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर्स पे नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडली, एक्स और वाई आपके दोनों जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, दे आर इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। ये एक्स और वाई मैंने सेम इसलिए रखा है ताकि आपको पता चले कि दे आर नॉट सेम। दीज आर योर एक्चुअल पैरामीटर्स एंड दीज आर योर फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ तक तो बात हो गई। कंट्रोल ट्रांसफर हुआ फंक्शन डेफिनेशन पे। यहाँ पे आपके पास x प्लस 10 आ गया, y के पास 20 आ गया। अब आते हैं फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है कि x में 20 डाल रहा है और y में 10 वैल्यू डाल रहा है। उनकी वैल्यूज चेंज कर रहा है। x में पहले 10 था, फंक्शन ने उसको x में 20 कर दिया, और y में 20 था और फंक्शन ने उसको y को 10 कर दिया। तो ये देखें, फॉर्मल पैरामीटर्स आपका x जो था अब उसमें 20 है जब ये टास्क परफॉर्म हुआ, ठीक है। x में 20 है, y में 10 है, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। अब अगर मैं चाहती हूं कि मैं अपने एक्चुअल पैरामीटर्स को प्रिंट करूं, अच्छा, दिस x एंड y दे आर लोकल टू दिस फंक्शन। ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल्स में आप जो मर्जी इसके साथ करें वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ आप इसकी वैल्यूज को कुछ भी कर दें, जब आप एक्चुअल पैरामीटर्स को प्रिंट करेंगे, जब ये टास्क परफॉर्म हो गया, कंट्रोल बैक आपके पास किधर गया, फंक्शन कॉल की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपकी रन होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स और वाई को प्रिंट किया है। तो आपके पास एक्स और वाई की क्या वैल्यूज आएंगी, दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 20, बिकॉज आपने कॉल बाय वैल्यू की है। कॉल बाय वैल्यू में आपके पास दोनों एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स दो डिफरेंट इक्वेशंस में होते हैं। जो भी टास्क आपने इधर परफॉर्म किया है that will not affect the actual parameters, ठीक है। So these x and y are local to this function, these x and y function के अंदर है, तो ये इसके local variables हैं, they will not affect the actual parameters. Whatever changes you made in these formal variables will not reflect it back to the actual parameters. So if we try to print value of actual parameters x and y, output will be same, that is x10 ही रहेगा, y, sorry, this is y will be 20, this is not 10, तो यहाँ पे x 10 है और y 20, ठीक है। So x 10 होगा और y 20. Let us see in code block. I hope it is clear. आगे भी हम और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। ये एग्जाम्पल थी, नहीं, अच्छा, ये एग्जाम्पल कोड ब्लॉक में नहीं है, अगली एग्जाम्पल हम कोड ब्लॉक में देख लेते हैं जो भी सिमिलरली है। इसमें क्या है, अगेन फंक्शन, वी आर कॉलिंग अ फंक्शन by passing values. Similarly,
अच्छा, फंक्शन डेफिनेशन में क्या है? फंक्शन इज एक्चुअली सम का फंक्शन है। टू वेरिएबल्स हैं a and b, so you can tell me what are these a and b, these are formal parameters. फंक्शन डेफिनेशन में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं they are the formal parameters, ठीक है। so a and b are the formal parameters. इंटीजर c a प्लस b, ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? a और b को ऐड करके c में स्टोर कर रहा है और रिटर्न कर रहा है c, ठीक है। c आपकी वैल्यू रिटर्न हो रही है। This is your main function. We have two variables declared here, variable 1 and variable 2. Variable 1 have value 10, variable 2 is 20. वेरिएबल 3 में आपने क्या किया? फंक्शन कॉल किया और जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन आप वेरिएबल 3 में स्टोर कर रहे हो। सो सम वेरिएबल 1 comma variable 2, these are your actual parameters. You are passing value 10 and 20 to the फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। आप फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या वैल्यू पास कर रहे हो? ए में आपके पास आ जाएगी 10 और बी में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20। यहाँ परफॉर्म होगा 10 प्लस 20 और सी में स्टोर हो जाएगा 30 और रिटर्न होगी 30 वैल्यू। जब ये ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस आपके एंड होंगे तो यहाँ से आपका आएगा कंट्रोल बैक टू दिस and variable 3 will store 30 value, ठीक है। when you will print variable 3 you will get 30 value, ठीक है। so a and b are the formal parameters, variable 1 and 2 are actual parameters. The actual parameters can also be the values. अच्छा, आप इसको सिंपली सम 10, 20 भी पास कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल नहीं पास करते, यू कैन जस्ट सिंपली पास वैल्यूज। So 10 और 20 आपके actual parameters हो जाएंगे। So recall, in the call by value, the actual arguments are copied to the formal arguments. सिर्फ उसकी कॉपी आपके पास जाएगी। Hence any operation performed by function and argument doesn't affect your actual parameters, ठीक है। So you can see in the code block, yeah, this is an example. So answer variable 3 में क्या आना चाहिए आपके पास? 30 answer आए। Okay, so your answer is 30. You're just passing the values. इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। ओके, इसमें आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वो तो सिंपल था। इसमें आपके पास क्या है? एक फंक्शन है जो कि इंक्रीमेंट कर रहा है वेरिएबल, जो भी आपको पैरामीटर आप पास कर रहे हो उसको इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में दिस इज योर रिटर्न टाइप, दिस इज योर फंक्शन नेम, ये डेटा टाइप आ गया आपकी वेरिएबल की, दिस इज योर फॉर्मल पैरामीटर। वेरिएबल फॉर्मल पैरामीटर आ गया। दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्या कर रही है? वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट करके उस वेरिएबल में स्टोर कर रही है और वेरिएबल की इंक्रीमेंटेड वैल्यू रिटर्न हो रही है। दिस इज द मेन फंक्शन। यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है नंबर 120। जब आपने फंक्शन कॉल किया, आपने एक्चुअल पैरामीटर, यहाँ दिस इज नंबर 1 इज योर एक्चुअल पैरामीटर, ये आपने पास किया टू द फंक्शन डेफिनेशन। अब यहाँ वेरिएबल में आपके पास क्या वैल्यू होगी पास? 20। यहाँ पे 20 में 1 ऐड हुआ, दैट इज 21 एंड स्टोर्ड बैक टू वेरिएबल, राइट। यहाँ वेरिएबल में स्टोर हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 21। रिटर्न क्या हुई? 21। जब ये क्लोज हुए ब्रैकेट्स तो बैक आया कंट्रोल यहाँ पे आपके इस लाइन में, एंड दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन नंबर 2। अब नंबर 2 में आपके पास क्या स्टोर्ड है? 21, ठीक है। सो इफ वी प्रिंट नंबर 1 एंड नंबर 2, व्हाट शुड बी द रिजल्ट? नंबर 1 में क्या है एंड नंबर 2 वेरिएबल में क्या है? अकॉर्डिंग टू द जो भी हमने स्टडी किया पीछे प्रीवियसली स्लाइड्स पे, अगर हम उनको रिकॉल करें तो आपके पास जब आप फंक्शन कॉल बाय वैल्यू करते हो तो आपके पास एक्चुअल पैरामीटर्स आर नॉट अफेक्टेड। whatever you does in do in your function body,
वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करेगी. सो नंबर 1 इज योर एक्चुअल पैरामीटर. इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू 20 ही होनी चाहिए. ठीक है. And number 2 should be 21 because it is storing the value that is returned from the function definition. So we pass the variable number 1 by calling the method, but since we are calling the function using call by value method, only the value of number 1 is copied to the formal parameter. Okay. Achha, let us see in code block. This is the same program. Let us run. We should get 20 and 21, right? So number 1, this is your actual parameter and this should not be changed. So that should be 20 and this should be 21, the output of the function. You can see first one is 20 and the second one is 21. Okay, so the next example, okay, swapping numbers using function call by value. So the function, what is function doing? It is swapping the way. This is very common example. आप सिंपल क्या करते हो, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हो और उस पर आप वैल्यू स्वैप कर लेते हैं. सी, so this is a very common way to swap a value. आपके पास this is your function definition, swap number आपके पास इसकी, this is void is returned, that is this is not returning any value. Two variables, variable 2, variable 1 with data type integer. These are your formal parameters. Variable 1 and variable 2 are your formal parameters. So इन दो को बेसिकली हमने फंक्शन बॉडी में क्या करना है, इनको स्वैप करना है. हमने एक और ले लिया टेम्पररी टेम्प नंबर, कॉपिंग वेरिएबल 1 वैल्यू इनटू टेम्पररी वेरिएबल temp number is equal to var1, where variable 1 is equal to variable 2, variable 2 is equal to temp number. This is very common method to swap two numbers, right? तो ये हमने बॉडी में फंक्शन बॉडी में इसकी ये हमने स्टेटमेंट्स लिख दी. कमिंग टूवर्ड्स द मेन फंक्शन में हमने टू वेरिएबल्स रखे हैं जिनको बेसिकली हमने स्वैप करना है. ठीक है. फंक्शन कॉल करके जिन नंबर्स को हमने स्वैप करना है वो टू नंबर्स हमने मेन फंक्शन में डिफाइन कर दी. वन इज नंबर 1 35 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 45. ठीक है. यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे और देखेंगे. अच्छा, वे इज योर फंक्शन कॉल. ये हमने बिफोर स्वैपिंग भी प्रिंट किया नंबर 1 नंबर 2. ठीक है. फिर हमने स्वैप नम का फंक्शन कॉल किया और अगेन हमने उनको प्रिंट किया नंबर 1 नंबर 2. नाउ टेल मी, यहाँ जब हमारे पास फंक्शन कॉल हुआ स्वैप नंबर, यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुआ द कंट्रोल विल गो बैक टू द फंक्शन डेफिनेशन. नंबर 1 की जो वैल्यू दैट इज 35 इज पास टू वेरिएबल 1 and number 2 that is 45, the value is passed to formal variable 2. Now it will perform the swapping according to this function. क्या होना चाहिए, वेरिएबल 2 में आ जाना चाहिए 35 और वेरिएबल 1 में आ जाना चाहिए 45. ठीक है. यही परफॉर्म कर रहा है ये फंक्शन. बेसिकली क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है. तो इसके हिसाब से तो इन दो की वैल्यू स्वैप हो जानी चाहिए. वेरिएबल 2 में आ गया 35 एंड वेरिएबल 1 में हमारे पास आ गया 35. लेकिन जब हम यहाँ प्रिंट करेंगे 35 45 नंबर 1, ये तो यहाँ बिफोर स्वैपिंग तो हमें पता है 35 45 आएगा. आफ्टर स्वैपिंग टेल मी कि आपके पास नंबर 1, आप खुद सोचें कि नंबर 1 नंबर 2 में आपके पास क्या वैल्यूज आएंगे. वी आर कॉलिंग द फंक्शन बाय कॉल बाय वैल्यू, राइट. वी आर पासिंग जस्ट वैल्यूज. As we have discussed previously that in function called by value, the actual parameters are not changed. Whatever you are doing in your function definition, जो function statement में जो भी task आप perform कर रहे हो, that will not affect your actual parameters, right? So in that case, if you run that program, यहाँ पे जब आप नंबर 1 नंबर 2 प्रिंट करेंगे यू विल गेट 35, यू विल गेट नंबर 2 45. बट इवन आफ्टर स्वैपिंग
you will get the same result. Number 1 will remain 35 and number 2 will remain 45 because your actual parameters are not affected by formal parameters in function called by value, right? क्योंकि they are in stored in different memory location. उसने task perform कर लिया, that is, but it will not change the value of your actual parameter. So let us run this program. This is the same program. ठीक है, दिस इज द सेम प्रोग्राम. हम देखना चाह रहे हैं कि बिफोर स्वैपिंग आपकी इन दो वेरिएबल्स एक्चुअल पैरामीटर्स में क्या वैल्यू स्टोर हुई है और आफ्टर स्वैपिंग आपके इन एक्चुअल पैरामीटर्स में क्या वैल्यू स्टोर हुई है. अकॉर्डिंग टू द previous slides, according to the previous knowledge, they should remain same. Your formal parameter should not change the value of actual parameter when you're calling the function by value. Let us run this program. You can see before swapping and after swapping, the results are same. There is no change. So this program is not actually swapping the numbers. Though the function is swapping, function का जो task है वो swap कर रहा है, लेकिन वो actual parameters को change नहीं कर रहा. ठीक है, actual parameters आपके same रहेंगे. कोई भी परफॉर्म, जो भी टास्क आप फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट, not change your actual parameters. So this is actually your function called by value. देखते हैं कोई और एग्जांपल है इसके साथ कि नहीं. अच्छा, आई थिंक ये एग्जांपल्स इनफ थी. we will see the next topic, that is function called by reference or passing values by reference. वो इससे कैसे डिफरेंट है.